motivational steroid. The second ODI of the India tour of Pakistan was halted 4 times due to crowd disturbance, including 3 incidents of stone throwing directed at the Indian fielders. यह कहानी है 30 सितंबर 1997 को कराची में हुए विल्स चैलेंज सीरीज के दूसरे वनडे की। यही वह दिन था जब सज्जनों का खेल क्रूर हो गया। 1997 में इस दौरे तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण 1989-90 के बाद से टीम इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था। हालांकि पड़ोसियों ने तटस्थ स्थानों पर एक दिवसीय मैचों में एक दूसरे के साथ खेलना जारी रखा। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए पाकिस्तान लौट आई। यह टूर्नामेंट पाकिस्तान की आजादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। पाकिस्तानी कप्तान सईद अनवर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी जोड़ी सईद अनवर और शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान को सधी हुई शुरुआत दी। Hammered through backward of point by Saeed Anwar. That's a top class shot. That's really raced into the boundary. This time he found the gap. That'll be 4 runs for the taking. Good cricketing shot from Afridi. Just stood up tall and this time he's found the gap. Again hit with tremendous power. आठवें ओवर में 22 गेंदों में 18 रन बनाकर सईद अनवर को राजेश चौहान ने वापस पवेलियन भेज दिया। शाहिद अफरीदी अच्छा खेल रहे थे और लगभग हर गेंद पर मिडिल कर रहे थे। Straight back over the bowler's head. This will take him to 50. Another terrific knock by Shahid Afridi. 4 balls to get to that 50. And this is an even bigger hit. He has really middled that one. And it's cleared the mid-wicket fence quite comfortably. So this man is on a roll. 10 runs at the last 2 deliveries. And Pakistan really motoring along at this stage. Well, you talk about temperament in cricket. This is what it is. Having given him the charge, it was fairly obvious that Coriola is going to pitch the next one short, anticipating that he would charge down the pitch once again. But Afridi stayed. पाकिस्तान ने 91 रन पर अपना दूसरा विकेट खो दिया क्योंकि अफरीदी को सबा करीम ने स्टंप आउट कर दिया। लेकिन जब निर्णय तीसरे अंपायर के पास भेजा गया तो टीवी अंपायर रियाजुद्दीन ने उन्हें नॉट आउट दिया और पाकिस्तान 1 विकेट पर 91 रन बनाकर रह गया। पाकिस्तानी अंपायर का यह विवादास्पद फैसला उपद्रव की शुरुआत थी। Giving it some fearful stick, Shahid Afridi. This is the one that Chauhan has bowled around the off stump, just outside. He's been concentrating on the leg stump line. And though Karim didn't gather it, it bounced off his gloves onto the stumps with Afridi well short. So Pakistan have lost their second wicket for 91. Decided to press the other button. That was out. No doubt about that. Well, why that was not out is a mystery to me. There's no doubt about it. That should have been given out. Well, Afridi stays there to live another day. And the Indian team just cannot believe it. अंततः 19वें ओवर में 56 गेंदों पर तेजी से 72 रन बनाकर अफरीदी को नीलेश कुलकर्णी ने वापस पवेलियन भेज दिया।
जब उन्होंने मैदान छोड़ा तो पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 126 रन था। 26 for 2. राजेश चौहान ने जल्द ही इजाज अहमद को आउट कर दिया और पाकिस्तान का स्कोर 148 रनों पर 3 विकेट हो गया। Down there at Gully, there's a good catch, kept his eyes on the ball, got 2 hands to it, and Pakistan have lost the wicket of Ijaz. And Kulkarni's got one more, further proof that he's... And to his right, took the catch in 2 hands. चौथे विकेट का साथी ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और राजेश चौहान ने सलीम इलाही के रूप में पाकिस्तान को चौथा झटका दिया, जो 34 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। Quite to the pitch of it. To Salim. 40वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 226 रन था। तभी शर्मनाक बात यह हुई कि पाकिस्तानी दर्शकों ने भारतीय फील्डर पर पत्थर फेंके। भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर बाउंड्री रोप के पास फील्डिंग कर रहे थे, तभी उन्हें तीसरी बार पत्थर लगा। उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और मैदानी अंपायरों से बात करने का फैसला किया। पाकिस्तान बेहद मजबूती से खेल रहा था। इंजमाम उल हक 74 रन पर और मोइन खान 31 रन पर खेल रहे थे। उन्होंने 47.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाए। And it's clear the boundary. It could almost... एक बार फिर क्राउड ने सौरव गांगुली पर पत्थर फेंककर भारतीय फील्डर को परेशान किया। यह चौथी बार था जब भारतीय खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी दर्शकों ने हमला किया। सचिन टीम के साथ मैदान से बाहर जाने लगे और मैच रेफरी रंजन मधुगले खिलाड़ियों की सुरक्षा के कारण पहली पारी समाप्त करने पर सहमत हो गए। इसलिए पहली पारी 47.2 ओवर में रद्द कर दी गई और चौथे व्यवधान के बाद खिलाड़ियों को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे 48वें ओवर में पाकिस्तान की पारी अचानक समाप्त हो गई और भारत को 47 ओवर में 266 रन का लक्ष्य मिला। भारत की ओर से सौरव और सचिन ने पारी की शुरुआत की। सचिन के 21 रन बनाने के बाद अजहर महमूद की गेंद पर आउट होने से पहले उन्होंने 71 रनों की अच्छी साझेदारी की थी। And that's his strength. He won't have to run for that. Superb time. Oh, beautiful shot by Ganguly. This time it's Waqar Yunus's turn to get the punishment. Oh, he's blazed at that one. That'll be 4 runs. First boundary for the Indian captain. And this will be another boundary. Again hit on the up. Lovely follow through. Nice. And that's been dismissed from his presence by Tendulkar. A classic shot for... That's 4 more. Don't have to run for those. Again, exquisite timing. The boundaries are coming from just about anywhere now. Oh, that's money from heaven, that, you keep bowling out. Well, you've got to be crackers to keep bowling outside of. He's given it everything. Good job. It's 2 overs, cost him 27. And Azhar Mahmood is now bowling and he's got the wicket. What a catch by Moeen. Mahmood was looking for a bit of space to... विनोद कांबली क्रीज पर सौरव के साथ शामिल हुए। वे दोनों अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे। वे दोनों अजेय थे। उनके बीच 98 रनों की साझेदारी हुई। गांगुली 96 गेंदों में 89 रनों की मैच विजयी पारी खेलकर 30वें ओवर में वकार यूनिस की गेंद पर आउट हो गए। दुर्भाग्य से एक जोखिम भरे सिंगल के कारण विनोद कांबली रन आउट हो गए। कांबली के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन भी 6 रन के न्यूनतम स्कोर पर रन आउट हो गए। इसके तुरंत बाद अजय जडेजा को वापस पेवेलियन भेज दिया गया और अब भारत 199 रन के स्कोर पर 5 विकेट खो चुका था। रॉबिन सिंह और सबा करीम के बीच 62 रनों की साझेदारी ने भारत को जीत दिलाई। भारत ने यह मैच 4 विकेट से जीत लिया। Robin Singh puts his arms up. What a great innings, and that's a smile of a very, very happy man. India have won. They've drawn medal. भीड़ की परेशानी,
तीसरे अंपायरिंग निर्णयों के कारण देरी और मैदान पर चोट के कारण समय की भारी हानि हुई और ओवर रेट भी खराब रहा। चौथे भीड़ के व्यवधान के कारण भारतीय टीम को बाहर जाना पड़ा, जिस स्थिति में पारी समाप्त हो गई। जवाब में सौरव गांगुली, जो पत्थरबाजी का शिकार भी हुए, उन्होंने 89 रन बनाए, जबकि विनोद कांबली ने भी अर्धशतक बनाया, जिससे भारत ने मैच में 3 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। Thank you for watching. Subscribe to our channel for more videos and don't forget to like, share and comment.